और बताओ. Can I ask now? हाँ, yes, yes, अंजलि बोलो. I'm Sir, having tea after with your graduation. permission. With your permission. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can have it. Sir, after graduation, I had a 1 year drop, and after the drop, I did a 1 year diploma in travel and tourism. So, should I mention the drop year or should I not? You want to say whether about drop you should mention or not? Drop, yes, sir. 1 year No break need to after mention. graduation. No need to mention. See, it's not possible that you will do things constantly or regularly. It's not necessary. ठीक है ना? For any reason whatsoever, हम 1 साल का गैप हो जाता है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको बताने, आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है. नो नीड. आपने ये बताया मैंने ये किया, फिर उसके बाद ये किया, फिर उसके बाद ये किया. That's all. You are not telling them years. आप समझ गए? जब आप अपने बारे में बताते हैं तो you have to tell them मैंने 10+2 किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जिसमें की या पोस्ट ग्रेजुएशन की या आपने कोई डिप्लोमा किया, उसके बारे में बताइए आप. Year wise they are not concerned. That's not very important also, unless there is a big gap. ठीक है? बताइए next. Sir, what would be the suitable answer if they will ask why you have opted this post and why you are coming in this field? So far as this field is concerned, of course we are in this field only. Stenography चुना हमने, पहली बात. फिर हमने PA चुना, दूसरी बात. फिर हमने DDC चुना, तीसरी बात. ठीक है ना? यही है ना, आप यही कहना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये कहना है कि so far as I think this is a very good position for me. ठीक है? If I look in the market, this situation which is happening today, even if I go for SSC examination or some other examination, I may get a junior post. Okay. So far as DDC is concerned, it's a better job as even if we compare with the SSC. ठीक है? SSC में देखिए D से तो ऊपर है ही है और C से भी शायद ये ऊपर होगी. Am I right? बताइए किसी को ज्यादा डिटेल पता है तो. पे भी अच्छा है इसमें, पे भी काफी I think अच्छा है. C के बराबर होगी या C से अच्छी होगी? सी के इक्वल बराबर है शायद. यस C सर. के बराबर है. C के बराबर यस सर, कुछ डिपार्टमेंट में सी से ज्यादा है. आप सर C से ज्यादा है. आपको C से ज्यादा ही कहना है. ठीक है ना? आपको C से भी जाना कि अगर even if I try for SSC, this is better than that. Thirdly, I feel fortunate. I feel I'll be fortunate to work with people who are doing justice to the people, to the common man. I want to work with legal people. I had a desire to work with the people who are in the who are judges, who are honorable judges for us. I want to work with them, and I want to know something new, because office work will also be in the DDC. But I don't want to do normal office work. I want to see what happens in the legal system also apart from that. आप समझ गए? आपके पास डबल अपॉर्चुनिटी है. एक तो आपका पे स्केल ज्यादा है, जॉब अच्छी है, उसके बाद जो है आप नॉर्मल ऑफिस में जाएंगे तो सिर्फ ऑफिस का काम करेंगे, पता नहीं किस जनरल नेचर का होगा. लेकिन यहाँ आप एक स्पेशलाइज्ड फील्ड के लोगों से देख रहे हैं. आप समझ गए मेरी बात? तो आपको ये बताना है कि आई विल हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद पीपल हु आर डिलीवरिंग जस्टिस इन आवर कंट्री एंड हु आर एट द टॉप ऑफ द लीगल सिस्टम. समझ गए? Yes, sir. Sir, Next. what points should I add to a good introduction? देखिए, आप अपने इंट्रोडक्शन में you can start with your full name, your name and age, and one line about your family, about your parents, brothers, sisters, जो भी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. फिर अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए. Then about your professional or academic qualification जो भी है उसके बारे में बताइए. और if you have experience, then people who have, they can add. Or presently whatever you are doing, that also you need to tell them that
I'm preparing for all these competitive examinations in stenography field, whatever you feel. बस इतना ही बताने की जरूरत है। उसके बाद अगर वो उसमें कुछ क्वेश्चन कुछ पूछेंगे आपसे तो फिर आप बताना। अपने बारे में जब बताएंगे तो ये ब्रीफ में बताना, दिस इज ओके, ठीक है ना। इफ दे आस्क यू कि आपने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट किए, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या लिया, या आपने और कुछ पूछेंगे तो वो डिटेल में पूछ लें, लेकिन आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल अगर कोई अचीवमेंट है वो, और थोड़ा फैमिली के बारे में, फैमिली का बैकग्राउंड बता सकते हैं, फादर इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, और मदर इज हाउसवाइफ, और वट एवर इट इज, ब्रदर सिस्टर इतने हैं बस। उसके बाद अपने बारे में बता दीजिए, बस यही है। दैट इज व्हाट दे एक्सपेक्ट। सर सिलेक्शन अगर तो हो वो जाएगा ना? पूछें कि देखिए पूनम ने पूछा ना सिलेक्शन हो जाएगा, यस सर। क्यों नहीं होगा? ये मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं होगा। बिल्कुल सर मेरा ये 3 बार स्टाफ सिलेक्शन। देखिए ऐसा है, मैं बताऊं पूनम, ऐसा है, मैंने जैसे बताया ना आपको, योर बैच आप देख लेना कहीं, योर बैच इज वेरी फॉर्चुनेट दैट यू फ्यू पीपल हैव इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो ना आप लोग। इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट्स नॉट एन इजी जॉब। आई कैन इमेजिन आपने कितनी मेहनत की होगी, ठीक है ना। और आपने देखा कितने लोग टाइपिंग में फेल हुए हैं, पता है आपको? यस सर। चाहे वो एसपीए की बात करें, चाहे एसपीए की बात करें, चाहे पीए की बात करें। इवन देखो आप कितने में से आपने 157 क्वालिफाई किया है? सर Around 4500। कितने? more than 4500। 4500। जस्ट इमेजिन व्हाट इज द परसेंटेज। इट कम्स टू अराउंड मे बी 13 मतलब 15% के आसपास। मुश्किल से 15% भी कहाँ आएगा। 1400 का 10% आता है 145, सॉरी यस सर। 4000 कितने कह रहे हो आप? 140। The 3% around। 3%, sorry 3%। 3% you have qualified. Just imagine, it's not a small thing to reach here. And after that they are also they are having lot of vacancies, so they should not find reasons for rejection. अब उनको देखना पड़ेगा, अगर किसी ने मिसबिहेव किया या किसी ने ज्यादा ऐसे गलत बोला तो दूसरी बात है, नॉर्मली सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड आई विश आल्सो एट द सेम टाइम। समझ के? क्योंकि अगर मुझे दिया जाएगा तो मैं तो जब तक कि किसी से लड़ाई ना हो तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उनको लोग चाहिए भाई, नहीं चाहिए? ठीक है ना? हाँ। और आपने इंटरव्यू में बस आपने अपनी प्रिपेयर्डनेस दिखानी है। किसी भी फॉर्म में, किसी भी आंसर में आपने बताना है आई एम डेस्परेट टू ज्वाइन। यस सर। मैंने आई हैव वर्कड वेरी हार्ड टू रीच अप टू दिस स्टेज। इट वाज वेरी टफ फॉर मी। आपने टाइपिंग टेस्ट लिया, टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट इज नॉट इजी, समझ गए? उसके बाद आपने 100 का किया, शॉर्ट हैंड का किया, सब कुछ किया, इतने साल प्रैक्टिस की, एक्यूरेसी की, स्पीड करी, सब कुछ किया। तो ऐसा नहीं है, मुझे उम्मीद है कि सबका होगा, और मैं ये विश करता हूं कि हार्डली कोई रिजेक्ट हो, समझ गए? और आप लोगों भी अपना कूलली जाइए, माइंड से, फ्री माइंड से जाइए, और जो रिप्लाई आता है ढंग से दीजिए। और So one more thing. यस सर ये टाइम बचा है अभी, इसमें हमें क्या करना चाहिए? कुछ देखो नहीं, अंजलि, relax करो। मैं आपको ये बताऊं, टाइम अभी बचा है, टाइम तो आपके पास बहुत है जिंदगी, मैं तो उसी में चलता हूँ। आपको रुकना नहीं है, आप जहां पर भी हैं आज, आपको रुकना नहीं है। मतलब आप अपनी एक्टिविटीज को डेली रखिए। आप अगर एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो दैट इज अभी मत बढ़ाइए, कहीं जॉब लेने के बाद आप जो आगे करना हो करिए। अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो मुझे नहीं पता आपकी अभी क्वालिफिकेशन कितनी है, या आप और कितना ऐड करना चाहते हैं। सर मेरे भी एमकॉम के एग्जाम्स चल रहे हैं। हाँ, तो आपके एग्जाम चल रहे हैं तो आप उसी पे फोकस करिए, ठीक है?
उस पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि ये मेरे ख्याल रिजल्ट भी आपका ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन में आ जाना चाहिए। आ जाएगा सर। 15-20 दिन में रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं है हाँ जी। कैंडिडेट, और इतना सोचना भी नहीं है उनको, और वो इस बारे में जल्दी में भी हैं ताकि इसको कंक्लूड करें। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कहीं से कोई ऐसा थ्रेट अभी तक आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन वो भी ये चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी कंक्लूड कर दें। जब आप कंक्लूड कर देते हो, ऑफर भेज देते हो, देन थिंग्स आर डिफरेंट। समझ गए ना? तो अगर करने की बात है तो थोड़ा टाइम और रुक जाइए, अभी कोई नई चीज शुरू मत करिएगा। 2-3 महीने जो कर रहे हो उसी में कंटिन्यू करें। आफ्टर यू गेट सेटल्ड हेयर, उसके बाद आपने देखना है कि इंटरनली आपको क्या चीज हेल्प करेगी, और सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए टू गेट SPA इन DDC। इफ यू ज्वाइन DDC, फर्स्ट टारगेट शुड बी कि मेरे को SPA लेना है। ठीक है ना? और अगर मैं उसके आगे और तो लगाऊंगा ही नहीं, मतलब आप DDC में जाइए और DDC में इंटरनल एग्जाम के लिए तैयारी करिए, और अगर इंटरनल अपॉर्चुनिटी नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम आपने SPA लेना है, ये सोच के जाइए। ठीक है। क्योंकि the reason is this is the only age, maybe next 2-3 years for all of you। 25-27 जो भी उम्र है इसमें मैक्सिमम वहीं तक है। उसमें जितने आप एफर्ट कर लेंगे, जितना आप ग्रो कर लेंगे, वो आपको कल को बेनिफिट देगा, ये सोच के चलिएगा। समझ गए ना? अब आपको रुकना नहीं है, जब तक SPA नहीं मिलेगा तो आपको बैठना नहीं है। और आपने ऑफिस में भी, जिस भी ऑफिस में काम करें, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। समझ गए? कभी भी ऑफिस को ये नहीं सोचना कि ऑफिस है, वो सोचिए मेरा ऑफिस है। ऑफिस किसी और का नहीं है, मेरा ऑफिस है, और मैंने यहाँ ग्रो करना है, मैंने यहाँ काम करना है। समझ गए? जब ये एटीट्यूड होगा ना आपका, आपके फेस से सब चीजें पता लग जाएंगी। जब आप इंटरव्यू में जाओगे, आपके फेस में पता लग जाएगा कि he or she is very much charged to join। समझ गए? और बताइए कुछ। सर जैसे अभी हमारे पास इंटरव्यू के लिए 10 ही दिन बचे हैं सर, जैसे ना, तो मेरा अभी सर हाईकोर्ट नैनीताल, उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में भी हो रखा है, तो सर मेरा लास्ट रिटर्न बचा है, स्टिल क्वालिफाइड है। तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्यों समझ क्यों नहीं आ रहा? सर मैं 10 दिन में समझाता हूँ। मुझे उसमें समझने का विनोद, उसमें समझने का है क्या? कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें। तुमने क्या करना है, जो ऑफर पहले आएगी उसको रिस्पेक्ट देनी है। समझ के? ऑलवेज कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। जो पहले आएगी उसको ज्वाइन करूंगा, जब पहली मेरे हाथ में आ जाएगी उसके बाद दूसरी आएगी तो मैं सोचूंगा क्या वो पहली से अच्छी है। अच्छी होगी तो मैं जाऊंगा, नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। सिंपल। समझ गए? यस, ऐसे ही होना चाहिए ना भाई। मेरे एक हाथ, मेरे अभी कोई भी हाथ में नहीं है, मैं अपने आप को कंफ्यूजन में रख रहा हूँ किस लिए? जब मेरे पास एक आएगी मैं ज्वाइन करूंगा, उसके बाद काम करूंगा वहां पे, उसके बाद दूसरी आएगी तो मैं सोचूंगा क्या वो अच्छी है। उसको उस वक्त इवैल्यूएट करेंगे जब वो आएगी। जब आएगी उसके बाद कैसे अच्छी होगी तो वहां जाएंगे, नहीं तो ठीक है। Am I clear? Yes, why not? Yes, that should be the approach. ठीक है? अब मेरे से कोई पूछता है इसमें YouTube में कि ये अच्छी है वो अच्छी है, मैं कहता हूँ जो पहले मिलेगी वही अच्छी है। अरे हमारे पास आई एक भी नहीं है और इवैल्यूएट, हाउ कैन आई इवैल्यूएट यार? Yes sir. Why am disturbing my mind? कोई जरूरत नहीं। आप अपने कर्म करिए भाई, आप अपना एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। जॉब की किसी को कमी नहीं है, जॉब आएगी और पक्का आएगी। बिल्कुल। इस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं जो आपने क्लियर किया है, ये सोच के चलिए जॉब नजदीक है अब आपकी, क्योंकि आपने इतनी मेहनत कर रखी है सबने। जॉब नजदीक है। दिस इज व्हाट आई विश एंड होप आल्सो। सर जैसे 10 क्वेश्चंस है। हाँ बोलो। सर जैसे 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, मान लो 10 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे होंगे और कुछ करंट अफेयर्स पे होंगे। अगर जैसे कुछ अंदर से पूछ दिया, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशंस, तो उसमें थोड़ा रुक गए, अगर नहीं आ पा रहा तो फिर क्या होगा? सॉरी सर नहीं आता, ये बोल दो। देखो ऐसा है, अगर नहीं आता तो आप प्लेनली कह सकते हैं कि सर
Yes, sir. मुझे नहीं आता, कोई ऐसी बात, देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग। Yes. देखिए ऐसा कोई भी इंसान दुनिया की हर चीज नहीं जान सकता और उससे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। कई क्वेश्चंस अगर आप उनसे पूछें तो वो भी नहीं दे पाएंगे, तो फिर समझ गए ना मेरी बात। तो ऐसा नहीं है, हाँ जी। नेवर फील अबाउट इट कि अगर आपने एक जवाब नहीं दिया तो हो गए, नाव डूब गई, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि मेरे को नहीं आता तो ये हो गया, कभी नहीं सोचना। ओके सर। हो सकता है आप Thank you. दूसरा उससे अच्छा जवाब दे दें, ठीक है ना। Yes. सर करंट अफेयर्स मतलब कहाँ तक के करके पढ़ के जाए सर करंट अफेयर्स? देखो करंट अफेयर्स में वैसे तो देखो पूनम कोई एंड नहीं होता, करंट अफेयर्स तो सभी करंट है, ठीक है ना। आप 2-3 सब्जेक्ट देख लीजिए, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उसकी थोड़ा हेडलाइन थोड़ा टच में रहिए, थोड़े दिन, एक हफ्ता 10 दिन ठीक है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़िए, और जो लेटेस्ट सब्जेक्ट आ रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सर तो वही तो जैसे बच्चे एसपी में पूछ पूछा सकते था, हैं करंट में। जैसे एसपी में पूछा था 2019 वर्ल्ड कप किसने जीता सर, ये क्वेश्चन भी पूछा था सर। किसमें? एसपी में? एसपी में हाँ, देखो 2019 वर्ल्ड कप। वैसे तो देखो मैंने कहा ना, कोई एंड नहीं होता इंटरव्यू में, कुछ भी पूछ ले, किसी के माइंड में क्या आ जाएगा यू डोंट नो, ठीक है। बट इफ दे आस्क यू एंड यू आर नॉट अवेयर, टेल देम सॉरी, आई डू नॉट रिमेम्बर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देंगे आपको, उसमें क्या है। आप करंट में जितने भी न्यूज़पेपर हैं हेडिंग में डेली पढ़िए। अगर आपसे पूछ लें करंट अफेयर तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वो बात दूसरी है कि आप हो सकता है यू मे बी एबल टू गिव अ पार्ट ऑफ द रिप्लाई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, सपोज, ठीक है ना। तो उसमें भी कोई फील करने की बात नहीं है, जितना रिप्लाई आता है उतना आप दे सकते हैं, और बिल्कुल नहीं आता तो आप कह दीजिएगा, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन दे देंगे। करंट इशू में आप थोड़ा फार्मर्स प्रोटेस्ट का पढ़ लेना, और Yes. अगर कोई और कोरोना पैंडेमिक सर। हाँ कोरोना का भी थोड़ा पढ़ लेना, अभी जो भी आप थोड़ा सा है, वैक्सीन के बारे में पढ़ लेना, जो वैक्सीन आई है 2-3 उसके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। और सर जैसे आप सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड भी पढ़ना पड़ेगा सर। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ पूछ लिया, आर्टिकल्स, जजेस। देखो ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के आपको चीफ जस्टिस का पता होना चाहिए, और सुप्रीम जो फंडामेंटल राइट्स की आप बात करें, थोड़ा सा ग्लांस कर लेना कौन कौन से हैं, फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए, पता होते हैं लेकिन हम जब रिवाइज करते हैं हमारे माइंड में फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है ना। उसको थोड़ा पढ़ लेना, और जो भी ऐसे आपके माइंड में आए ये चीजें इंपॉर्टेंट कर लो। बाकी देखो मैंने कहा ये तो कुछ पता नहीं, हो सकता है वो एकेडमिक कुछ भी ना पूछे आपसे, इट्स नॉट नेसेसरी। इंटरव्यू कैसे चलता है गॉड नोस, कुछ भी पूछ ले, आपके एकेडमिक पे पूछ लें, आपके ड्रेस पे बात करने लग पड़े, कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज यू डोंट नो। तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, जितना याद कर लो अच्छी बात है, और जितना रिवाइज कर लो वो भी अच्छी बात है। कीप योर माइंड पॉजिटिव, ठीक है, कूल एंड काम, और जो आता है बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं पूछेंगे कि आपसे ये नहीं पूछेंगे कि रॉकेट कैसे बनता है, बस ये सोच लेना, ये नहीं पूछेंगे रॉकेट कैसे बनता है। अरे आप पीए के लिए जा रहे हैं, आपसे पीए से रिलेटेड पूछेंगे, पीए की ड्यूटीज क्या होती हैं, तो मैंने आपको दिया, उसमें थोड़ा पढ़ लेना, पीए की ड्यूटीज क्या होती हैं वो बता देना। थोड़ा आपको जैसे एग्जांपल दे दिए, जैसे अभी उन्होंने कहा था कि इसमें अरुणा ने कहा था कि आपके घर में मैरिज है तो आप क्या करोगे, समझ गए ना। या आपकी हॉबी क्या है, हॉबी के बारे में पूछ लेंगे, थोड़ा सा उस पे कर लेना, हॉबी पे भी आप थोड़ा सा डिटेल में काम कर लेना, ताकि हॉबी के बारे में कुछ पूछ ले तो आप रिप्लाई दे सको, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको याद थोड़ी थोड़ी रिफ्रेश करनी पड़ेंगी, ताकि आप इमीडिएटली रिप्लाई दे सको। सर अगर किसी की बोलो अंजलि बोलो। सर अगर किसी की हॉबीज ही ना हो, मतलब जो डे टू डे लाइफ में जो वर्क होता है, जैसे कोई खा रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या वो चीज मेंशन करनी चाहिए?
नहीं या बना के आपसे वो- आपसे सपोज आपसे पूछे आपकी हॉबी क्या है, तो कुछ तो हॉबी होगी। नहीं सर, पूरा दिन इसी में चला जाता। स्पेसिफिकली तो सच कोई नहीं है, नहीं, लेकिन नहीं। अगर जो रूटीन बेसिस पे अगर बोला जाए तो यही होता है, खाना, पढ़ना, सोना। नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको। अब अगर हॉबी की बात करें, अगर आपको हॉबी में हो गया, आप थोड़ा सा हट के एक्टिविटीज, जैसे आप कुकिंग, अगर कुकिंग आपकी हॉबी है, ड्राइविंग आपकी हॉबी है, या ऐसा कुछ काम जो आपको प्लेजर देता है, इसमें वो थोड़ा सा, तो आपको कुछ तो बताएंगे आप, उसमें वो पूछ सकते हैं। सर मेरी हॉबीज स्केचिंग एंड पेंटिंग करनी है, तो उस पर क्या रिलेटेड क्वेश्चन? क्या करना? सर मेरी हॉबीज स्केचिंग एंड पेंटिंग करनी है, तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है? कोई आइडिया? पेंटिंग? स्केचिंग पेंटिंग मेरी हॉबीज है, तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है? हाँ पूछ हाँ, नहीं सकते हो? पेंटिंग है ना, तो आपसे कहेंगे आपके कुछ फेमस पेंटर के नाम बताइए। भाई आपकी जो हॉबी है, आप सपोज किसी की हॉकी है, तो उससे हॉकी के बारे में पूछ सकते हैं, क्रिकेट है तो क्रिकेट के बारे में पूछ सकते हैं। आपको पेंटिंग के बारे में पूछ लेंगे, आप पेंटर का नाम बताइए, इंटरनेशनल कोई इंटरनेशनल पेंटर का बता दीजिए, या इंडियन पेंटर का अच्छे का नाम बताइए। नहीं, सर अगर बुक रीडिंग का बोलते हैं पेंटिंग के बारे में है देखो, बुक रीडिंग में अंजलि, बुक रीडिंग में तो फिर आपसे पूछेंगे आपने रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी, हु इज द ऑथर ऑफ तो दैट। सर वो पूरा ऑथर और पूरा डिस्क्राइब करने को देखो बोलेंगे। ऐसा है, कोई भी डिड यू आप लाइक द बुक? और या तो आप बताओ, जो बताओगे उस पर थोड़ा सा तो वो पूछ सकते हैं, और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ठीक है सर अगर बोल दें कि